Good morning students, welcome back again. Okay, so let's continue the last topic of this, that is part 4 of this chapter 2, which is solution. Okay, so let's see what are those which are going to discuss. Okay, so here the topic we are going to discuss today, that is isotonic, hypertonic and hypotonic solutions. Okay, so you can see here isotonic solutions, which means if there is a presence of two or more solutions, those solutions having the same osmotic pressures. What is osmotic pressures? There I am clearly explained you in the previous video. Okay, so if you don't know what is osmotic pressures, with the figure I have explained, please watch that video. Okay, so if the two solutions or more solutions they having the same osmotic pressures, that means those solutions are said to be isotonic solutions. Okay, and here in the hypertonic and hypotonic solutions, इसमें क्या होता है, अगर दो solutions के पास unequal osmotic pressure रहा तो उनको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस को भी वही बोलते हैं, लेकिन कुछ चेंजेस है इन दोनों सॉल्यूशंस में. जब क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्या होता है जब सॉल्यूशन ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहा तो वो क्या रहता है, दे विद दी हैविंग ऑस्मेटिक विच मीन्स मोर ऑस्मेटिक प्रेशर्स, दो सॉल्यूशन सेट टू बी हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. ठीक है, अब यहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है, द सॉल्यूशंस दे आर गेटिंग मोर डाइल्यूट, दे एग्जिबिट द लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर. ऐसे सॉल्यूशंस को हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं. ठीक है, सो दिस इज द थ्री सिंपल डेफिनेशंस ऑफ दिस isotonic solution, hypertonic and hypotonic solutions. These are important and also very simple solutions. Okay, so let's see the next one, which is osmotic pressure and the concentration of the solution. इसमें क्या होता है, इसमें आपको इक्वेशन रहेगा, ये इक्वेशंस जो कि लिंक रहेगा मोलर मास ऑफ सोल्यूट फ्रॉम ऑस्मेटिक प्रेशर. ऑस्मेटिक प्रेशर का हमारा सिंबल है पाई. ओके, सो यहाँ पर कहता है फॉर एवरी डाइल्यूट, हर डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए द ऑस्मेटिक प्रेशर इक्वेशन ये रहेगा. ठीक है, दैट इज पाई इज इक्वल टू N2RT V. V यानी कि वॉल्यूम रहेगा, N2 यानी कि हमारा मोल्स रहेंगे. ठीक है, मोल्स ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट रहेगा. R जो कि गैस कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू है 0.08206 रहेगा, और टेम्परेचर हमारा T रहेगा. ठीक है, तो अब यहाँ पर पाई इज इक्वल टू कैपिटल MRT. ठीक है, यहाँ MRT कुछ चेंजेस आए. यहाँ पर हम लोगों ने क्या लिया है, द टर्म दैट इज N2 डिवाइडेड बाई V is the concentration in molarity में, तो we are taking this is equal to M. Okay, so after substituting N divided by V is equal to M, that is pi is equal to यानी कि osmotic pressure and concentration of the solution equation. Just 1 second students. Okay, concentration of solutions pi is equal to MRT रहेगा. ठीक है, and next that is molar mass of solute from osmotic pressure. यहाँ पर क्या होगा, very simple. इसमें क्या रहता है, we are considering the equation that is previous equation, pi is equal to N2RT divided by V. The term we know that what are those. यहाँ पर the term that is N2 जो कि moles है, moles of that non volatile solute का है, that is we have taken here W2 divided by M2. यहाँ पर क्या changes है, अगर if the mass of the solute जो है वॉल्यूम में है, that is liters of the solution, we are taken that as W2. ओके, एंड उसका मोलार मास क्या था, M2 था. ठीक है, तो देन N2 इज इक्वल टू व्हाट वी आर टेकिंग, N2 is equal to W2 divided by M2. So after substituting this N2 to this osmotic pressure equation, will have this pi is equal to W2 RT divided by M2 V, or you can also calculate M2 molar mass, that is M2 is equal to W2 RT divided by pi V. So these are the simple equations for the both osmotic pressure of and molar concentration of solution and also molar mass of solute from osmotic pressures. Okay, so this is about this, and next we'll see the reverse osmosis. Reverse osmosis is very simple. See, you can see here
यू कैन सी एज मेंशन्ड अर्लियर द ऑस्मोसिस में क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोसिस में क्या था, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट था. सॉल्वेंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो कि बीच में है. किसके पास जा रहा है वो दैट इज गोइंग इनटू द सॉल्यूशन. ओके, सो यहाँ पर द डायरेक्शन ऑफ ऑस्मोसिस दैट कैन आल्सो बी रिवाइज्ड या फिर रिवर्स्ड. हाउ? बाय द अप्लाइंग द प्रेशर, दूसरा प्रेशर, नॉट ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर. यू कैन सी हियर प्रेशर दैट इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर. प्रेशर इज ग्रेटर देन पाई. पाई इज अवर ऑस्मोटिक प्रेशर. तो यहाँ पर डेफिनेशन क्या है रिवर्स ऑस्मोसिस का? रिवर्स ऑस्मोसिस का डेफिनेशन वेरी सिंपल है. द प्योर सॉल्वेंट देन फ्लोज फ्रॉम सॉल्यूशन इनटू द प्योर सॉल्वेंट. ऑस्मोसिस में क्या था, ऑस्मोटिक प्रेशर में हमारा जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन में ऑलरेडी जा चुका था थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. तो वही प्योर सॉल्वेंट क्या करेगा, देन फ्लोज फ्रॉम दी सॉल्यूशन से इनटू दी प्योर सॉल्वेंट, यहाँ पर आएगा. तो थ्रू दी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, उस फिनोमेना को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, वेरी सिंपल. दिस स्कीमेटिक स्ट्रक्चर, द सेटअप ऑफ दिस फिगर, इट इज़ फॉर द रिवर्स ऑस्मोसिस. यहाँ पर क्या होता है, वेरी सिंपल. यहाँ पर हम लोगों ने फ्रेश वाटर यूज़ किया एंड सॉल्टी वाटर यूज़ किया जो कि सेपरेट हुआ है इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से. जब हम एक प्रेशर को लार्जर देन द ऑस्मोटिक प्रेशर को अप्लाई करेंगे सॉल्यूशंस को, तो वहाँ पर क्या होगा, टू दिस सॉल्यूशन व्हाट हैपेंस देयर, प्योर वाटर फ्रॉम द सॉल्ट वाटर इट इज पासेस इनटू द फ्रेश प्योर वाटर थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. वेरी सिंपल, यही इसका प्रोसेस है जो कि रिवर्स ऑस्मोसिस का है. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द रिवर्स ऑस्मोसिस. सी वेरी सिंपल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जो कि ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि ये रिवर्स ऑस्मोसिस लेके आ रहे हैं हम लोग. इसके लिए थोड़ा और प्रेशर यानी कि थोड़ा और एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है. ठीक है, जब सॉल्वेंट क्या किया है, ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट रहता है, दैट इज देन द pure solvent then flows from that solution into the pure solvent through the semi permeable membrane. उसी को हम बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस. ठीक है, तो यहाँ पर प्रेशर जो अप्लाई किया है जो कि ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर में है. ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेश वाटर एंड सॉल्ट वाटर एक गुड एग्जाम्पल लिया गया है विद दिस फिगर. ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट वन विच इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इन द नेक्स्ट चैप्टर विच इज आयनिक इक्विलिब्रिया, उसमें इलेक्ट्रोलाइट के बारे में ब्रीफली अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है. ठीक है, इसमें से आपको 3 टॉपिक मिलेगा. यू विल हैव 3 टॉपिक, दैट इज बॉन्ड ऑफ फैक्टर, मॉडिफिकेशन ऑफ एक्सप्रेशंस ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, एंड ऑल्सो यू विल सी द रिलेशनशिप बिटवीन बॉन्ड ऑफ फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज दैट इज अल्फा. ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का सिंबल क्या रहेगा तुम्हारा, ये अल्फा रहेगा. ठीक है, सो लेट्स सी द बॉन्ड ऑफ फैक्टर, द फर्स्ट वन इन दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. सी हियर, वेरी सिंपल. बॉन्ड ऑफ फैक्टर जो है यानी कि उसका सिंबल जो है तुम्हारा वो आई सिंबल है. ठीक है, बॉन्ड ऑफ फैक्टर इज आई. इट इज वेरी सिंपल. इट इज डिफाइंड, एक रेशियो है. किसका रेशियो है, यू कैन सी दिस, यू विल अंडरस्टैंड. इट इज डिफाइंड एज द ratio of colligative property of solution of electrolyte is divided by the colligative properties of non-electrolyte solutions of the same concentration. ठीक है, see here you can see that is I is equal to the ratio of these two, that is first one colligative property of electrolyte solution to the colligative property of non-electrolyte solutions of the same concentration. That is the definition of want of factor. Okay, so the thing that you have to know in this want of factor, that is the first one is ये जो रेशियो का यानी कि want of factor का डेफिनेशन I is equal to जो रेशियो था इलेक्ट्रोलाइट टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस, दैट इज द फर्स्ट इम्पोर्टेंट. एंड सेकेंड वन, सी ये want of ने क्यों अपना एक इक्वेशन दिया, वाई, बिकॉज टू ऑब्टेन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस बाय यूजिंग द रिलेशंस फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. ठीक है, सो want of ने सजेस्ट किया है कि द फैक्टर आई जो है उसी ने सजेस्ट किया है, आई उसका एक सिंबल है. तो बाय यूजिंग दीज टू यू विल हैव द इक्वेशन. ओके,
सो दैट इज इक्वेशन डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाई डेल्टा टी एफ नॉट. ये क्यों, मैंने प्रीवियस वीडियो पूरा डिटेल में देखो, ये डेल्टा टी एफ नॉट टी बी नॉट, आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस विद द ग्राफ. यू कैन प्लीज वॉच दैट वीडियो इन द प्रीवियस वीडियो, द 2 वीडियोज, द पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है. एंड डेल्टा P डिवाइडेड बाई डेल्टा P नॉट की, ठीक है, एंड पाई नॉट ऑस्मेटिक प्रेशर्स है, पाई नॉट. ओके, सो यहाँ पर क्या होता है, वे द क्वांटिटीज विदाउट द सबस्क्रिप्ट, these quantities without the subscript, they refers to electrolytes, and those quantities with the subscript, they refers to non-electrolyte solutions of the same concentration. Okay, so the want of factor I, it is also defined as you can watch this also, I is equal to, that is इट इज़ अ अल्टरनेटिव एग्जैक्टली इक्विवेलेंट मैनर में है, ठीक है. तो आई इज इक्वल टू एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है. एक्चुअल मोल्स जो सॉल्यूशन के अंदर डिसोसिएट हो जाते हैं वो टू दी मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व्ड इन दी सॉल्यूशन, ठीक है. एंड दैट इज इक्वल टू, दूसरा भी है, दैट इज आई इज इक्वल टू फार्मूला मास of the substance divided by observed, यानी कि theoretical, that is theoretical divided by practical, ठीक है. वेरी सिंपल, I is equal to theoretical divided by practical, ये है, ठीक है. सो दिस इज अबाउट वेरी सिंपल want of factor जो है वो बहुत ही सिंपल है, ठीक है. सो this is about the want of factors. Okay, next we'll see the modification expression of this colligative properties that we'll see in the next slide. Okay, so here see, you can see these 4 जो कि equations है, that is important for this modification expressions of colligative properties. See, the expressions of colligative properties mentioned earlier, किसमें, non electrolytes. Okay, they are to be modified as to make them applicable for electrolyte solutions. उसी को हम क्या किए, modify किए ताकि ये applicable हो सके electrolyte solutions के लिए भी, ठीक है. ये जो है मैंने previously जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो जिन लोगों ने भी वीडियो नहीं देखा है, प्लीज वॉच दैट वीडियो. ओके, सो हियर द फर्स्ट वन, ये एक्सप्रेशन सिर्फ मैं बोलती जाऊंगी, यही एक्सप्रेशंस इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस है, ठीक है. दैट इज फर्स्ट वन, डेल्टा पी जो है, ये जो विदाउट सबस्क्रिप्ट है ये इलेक्ट्रोलाइट के लिए है, ठीक है. नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप प्रीवियस वीडियोस देखो. दैट इज डेल्टा पी इज इक्वल टू आई पी वन नॉट एक्स टू. पी वन नॉट क्या है वो मैंने एक्सप्लेन किया है. आई इज इक्वल टू सब्सटीट्यूट दिस पी वन नॉट एक्स टू इक्वेशंस. ओके, सो दिस इज W2M2 डिवाइडेड बाई, सॉरी, W2 M1 डिवाइडेड बाई M2 W1. ये क्या है, मैंने ये भी अच्छे से एक्सप्लेन किया. ओके, एंड नेक्स्ट डेल्टा TB इज इक्वल टू IKBM. ओके, सो सब्सटीट्यूट दिस KBM. यहाँ पर वांट ऑफ फैक्टर जो I है ना, इसके साथ हम लोग बाकी सब टर्म्स को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं. फॉर किसके लिए, ये मॉडिफाई किया जा रहा है, ठीक है. ये जो है सिमिलर है, जो कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में हम लोगों ने स्टडी किया हुआ ही सिमिलर यहाँ पर आएगा, ठीक है, लेकिन विदाउट सब्सक्रिप्ट में रहेगा, ठीक है. 1000 kb W2 डिवाइडेड बाई M2 W1 एंड फॉर डेल्टा TF दैट इज IKFM. जस्ट सब्सटीट्यूट KFM, दैट इज 1000 kf W2 डिवाइडेड बाई M2 W1. ओके, एंड पाई ऑस्मेटिक प्रेशर IMRT, जो कि मैंने अभी जस्ट बताया. ओके, सो जस्ट one second. Okay, just substitute W2 RT divided by M2V. So this is the modified expression for the colligative properties of electrolytes. Okay, so let's see the relationship between want of factor and the degree of dissociation, that ionization बोल सकते हैं, ठीक है. degree of dissociation, that symbol is alpha, ठीक है. तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है, आफ्टर दिस आई विल गोना गिव यू सम होमवर्क क्वेश्चंस एंड ऑल्सो विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट द टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, सो हियर द रिलेशनशिप बिटवीन वांट ऑफ फैक्टर एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. ओके,
सो हियर आई एम टेकिंग एन इलेक्ट्रोलाइट, कंसिडर एग्जाम्पल, जैसे कि AX ले लो और AY ले लो, जो कि डिसोसिएट होता है इन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है AX एंड प्लस BY. इट गिव्स इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ठीक है, समझ लो इक्विलिब्रियम रिएक्शन X AY प्लस प्लस Y इंटू BX माइनस. ये क्या हो गया, डिसोसिएट हो गया. इनिशियली क्या है, मोल AX BY जो है वो 1 मोल में है, बाकी जो ये दोनों प्रोडक्ट है वो मोल 0 और मोल 0 में है. और इक्विलिब्रियम पोजीशन में, यानी कि फॉरवर्ड टू रिवर, फॉरवर्ड या सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट से सबस्ट्रेट, फॉरवर्ड टू रिवर्स में क्या हो गया, एट इक्विलिब्रियम में 1 माइनस अल्फा, अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोल, एंड हियर द प्रोडक्ट X डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोल एंड Y अल्फा यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मोल. ये है. तो यहाँ पर क्या होता है, दिस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, इफ अल्फा जो है हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है दैट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के लिए, देन द मोल्स ऑफ कैटायंस जो है दे आर अल्फा X, ये कैटायंस मोल्स के. ओके, वी हैव सी एंड दोज एनायंस जो है Y अल्फा, ये कैटायंस के लिए है, ये एनायंस के लिए. यू कैन सी X नेगेटिव है, Y प्लस है, ठीक है. तो यहाँ पर दी टोटल मोल्स जो आफ्टर डिसोसिएट होने के बाद जो मिलेगा वो है यही 1 माइनस अल्फा प्लस X इंटू अल्फा प्लस Y इंटू अल्फा. ओके, एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग यू विल हैव दिस वन, दैट इज 1 प्लस अल्फा इंटू n माइनस 1, ठीक है. n is equal to X plus Y. Okay, so here when n is where, जहाँ पर where n is equal to X plus Y जो मैंने बताया, that is equal to moles of ions that is obtained from dissociation of 1 mole of electrolyte. Remember this thing. n जो है moles of ions जो है, जो कि आया गया है यानी कि ऑब्टेन हुआ है कहाँ से, डिसोसिएशन ऑफ 1 मोल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन. ओके, सो जो इससे फॉलो करते हुए वोंटॉप ने अपना इक्वेशन दिया, दैट इज I इज इक्वल टू एक्चुअल मोल्स ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन टू द मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन. दैट इज यहाँ है ये टोटल, यानी कि जो एक्चुअल मोल्स मिला है हम लोग को डिसोसिएशन होने के बाद, वो मिला है 1 प्लस अल्फा ऑफ n माइनस 1 डिवाइडेड बाई जो यूनिट्स डिसॉल्व इन सॉल्यूशन हुआ था वो 1 था. ओके, सो हेंस I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, या फिर अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1. यू कैन ऑल्सो get this equation. Okay, so this is that's it which are involved in this solution topic. Okay, so I will going to give you some questions. There are total 9 questions in this. Okay, so here what is osmotic pressure, you have to write. A solution concentration is expressed in molality and not in molality while considering osmotic pressure, and why you have to write the reason. ठीक है, write the equation relating boiling point elevation to the concentration of solution. You have to write that equation. And what is want of factor, I जो कि मैंने बोला क्या है वो लिखना पड़ेगा. How is want of factor related to degree of ionization? A very simple equation. Okay, so next Raoult's law for a solution that containing a non-volatile solute. Okay, very simple statement है, ठीक है. What is the effect on boiling point of water? क्या इफेक्ट होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अगर 1 मोल ऑफ मिथाइल अल्कोहल ऐड करेंगे 1 डेसिमल क्यूब ऑफ वाटर, और क्यों रीजन के साथ लिखना पड़ेगा. ओके, विच ऑफ द 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज मोस्ट ऑफन यूज्ड फॉर मोलिकुलर मास डिटर्मिनेशन. why you have to write with reason. Okay, what are isotonic and hypertonic solution? Okay, so these are the questions for your homework. Okay, so I am going to show you the chapter 3. I have taken some main topic and let's see what are those. Here the main topic, types of electrolyte,
ठीक है। इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट ये सब आएंगे, ठीक है। एंड एसिड बेसिस इसमें बहुत सारे आएंगे, जैसे बहुत सारे मतलब सिर्फ 3 आएंगे, जैसे कि ब्रॉन्स्टेड थ्योरी आएगा, ब्रॉन्स्टेड लोरी थ्योरी आएगा, इनके मुताबिक एसिड बेस क्या होता है। अरेनियस थ्योरी आएगा, इनके मुताबिक एसिड बेस क्या है, ठीक है। और एंड ऑल्सो यू विल सी दी एनाइजेशन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस भी देखेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट विल सी दिस ओसवाल्ड्स डाइल्यूशन लॉ भी देखेंगे, ओके। एंड पीएच स्केल देखेंगे, टाइप्स ऑफ सॉल्ट देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स में जैसे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस है, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, एंड द लास्ट वीक एसिड्स एंड वीक बेसिस है, ठीक है। ये सब टाइप्स इसके अंदर आएंगे सॉल्ट्स में, ठीक है। एंड विल ऑल्सो सी दी बफर सॉल्यूशंस, ठीक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एंड अच्छा भी है टॉपिक, ओके। बफर सॉल्यूशंस में एसिड बफर सॉल्यूशन, जैसे कि बेस बफर, बेसिक बफर सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ बफर सॉल्यूशंस, उसके एप्लीकेशंस भी देखेंगे, और बफर एक्शन क्या होता है वो भी देखेंगे, ठीक है। एंड लास्ट में हम लोग देखेंगे कॉमन आयन इफेक्ट भी देखेंगे एंड सॉल्युबिलिटी देखेंगे, ठीक है। तो दीज आर द मेन टॉपिक विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो, दैट इज द थर्ड चैप्टर विच इज आयनिक इक्विलिब्रियम, ओके। सो okay students, so that's it for today, okay. Let's continue tomorrow, okay. And stay at home, please students, घर पे रहो, stay with your family and maintain the social distancing, ठीक है। okay, see you tomorrow students, bye bye.